So in the previous class we studied about the magnetic field due to a long straight wire in which I current is flowing, and the expression of magnetic field was B is equals to mu naught I upon 2 pi r. मैंने कहा था ये एक्सप्रेशन याद भी रखना. यूजिंग दिस एक्सप्रेशन वी कैन ऑल्सो प्रूव द एम्पियर सर्किटल लॉ. एम्पियर सर्किटल लॉ का अगर प्रूफ आता है तो उस प्रूफ को हम इसी एप्लीकेशन के रिजल्ट की हेल्प से प्रूव करते हैं. इवन जो बुक्स हैं उन बुक्स में भी आपको इसी रिजल्ट की हेल्प से प्रूफ मिलेगा. ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ. Okay, proof of Ampere circuital law means how we can prove this Ampere circuital law we are going to study. Now we are considering a wire, long straight wire, and at external point P the magnetic field is B and it is perpendicular out inward due to the current I. Okay, this is the case that we are taking a long straight wire of infinite dimension, or we say that infinite length, and the current I is flowing through it. The magnetic field B at point P distant small r, perpendicular distance है ये, perpendicular distance small r from this wire. Now we know the expression of magnetic field at this point distant r due to current I is mu naught I upon 2 pi r. So we use this expression and prove that this integral B dot dl is equals to sigma I times of mu naught. Okay, so how we prove this? First इसको introduce कर देते हैं. Considering an infinitely long straight wire carrying current I. Okay, ST dot means straight. The magnetic field due to this wire, due to it at perpendicular distance small r is given by. Now to prove this expression we know this relation which is mu naught I upon 2 pi r. Okay, which is mu naught I upon 2 pi r. This is the magnetic field at distance r due to the current carrying wire of current I. Okay, we know this expression, remember. Now considering, अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक लाइन एलिमेंट कंसीडर करेंगे at this point and said let the Amperian loop is this one. Okay, this is the Amperian loop of radius r. It is a circular loop of radius r, and the magnetic field directed in this direction. इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, B magnetic field, and the dl element is also in this direction. The P point is here suppose, and dl element is this one. This is the dl element and this is the magnetic field. Both are in same direction as we discussed earlier in its first application. Okay, so now considering a dl element on Ampere's loop या Ampere's circular loop of radius r at distance, sorry, of radius r as shown. Okay, at distance r ही है वो, as shown. Clear? थोड़ी सी चौक क्या है, सीजन के कारण वेट हो गई है, इसलिए मे भी
कुछ फॉन्ट्स विजिबल नहीं हो. सो राइट डाउन अप टू दिस वन. एक इंट्रोडक्शन लिखा है मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड डीएल एलिमेंट एम्पियर सर्कुलर लूप पर हमने कंसिडर किया है, या एम्पियर्स लूप कह सकते हैं उसको, और उसकी रेडियस क्या है? दिस रेडियस इज स्मॉल आर एज शोन. एंड हियर अकॉर्डिंग टू right hand thumb rule, according to right hand thumb rule, this B and DL are in same direction. Okay, यहां ऊपर लिख रहा हूं मैं B is parallel with DL. B is parallel with DL. Okay, so what happened? The angle theta, angle between B and DL vector is 0, will be equals to 0. दो वेक्टर्स जब पैरेलल होते हैं तो उनके बीच का जो एंगल है वो कितना होता है? 0 होता है. ओके, नाउ वी फाइंड द लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ की. द एम्पियर सर्किटल लॉ इज, रफ कर रहा हूं मैं इसे, we know the ampere's circuital law is, उसका स्टेटमेंट लिखते हैं, इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl will be equals to mu naught times of sigma I, और सिग्मा आई इन लिख सकते हो. दिस इज द एम्पियर्स लॉ. वी विल टेक इट्स लेफ्ट हैंड साइड एंड show that this left hand side is equals to this right hand side. Okay, and for this case here only I current is flowing. Here only I current is flowing through wire. So sigma I will be what? Sigma I in will be through wire or through loop. वायर की जगह हम लूप लिखेंगे, बेटर है वर्ड, थ्रू द लूप, क्योंकि सिग्मा आई इन क्या होता है? टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप. विच लूप? दिस एम्पेरियन लूप. ओके, इस एम्पेरियन सर्कुलर लूप से जो करंट फ्लो करती है वो सिग्मा आई इन होती है. तो सिग्मा आई इन क्या हो जाएगी? हियर इट विल बी इक्वल्स टू आई. ओके, so what will be this equation? Again रफ कर रहा हूं मैं इसे. This equation will be integral b dot dl will be equals to mu naught times of I. Equation number 2. Okay, taking left hand side. When we take its left hand side, then it will be integral b dot dl, which is integral b dl cos 0 degree, because the angle between this b and dl is what? It is 0 degree. So b dot dl will be b dl cos 0. ऊपर लिखा है हमने एंगल बिटवीन b and dl is 0 degree. ओके, इसको डिग्री लिख लेना. This is 0 degree. So this will be what? It is simply integral b dl. अब डॉट नहीं आएगा, simply integral b dl. Now this magnetic field B will have the same magnitude at its all points. क्यों होगा सेम? क्योंकि देखो r डिस्टेंस सेम है इस सर्कुलर लूप के हर पॉइंट पर. r डिस्टेंस सेम है एंड प्लस करंट I भी सेम है. तो फॉर सेम I एंड सेम r the B will be same. जो एक्सप्रेशन अभी हमने लिखा था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, इस एक्सप्रेशन में अगर I और R सेम हो हर पॉइंट ऑफ द सर्कल के लिए, then what happened? This B will be constant, and if it is constant it can be taken out. So out from the integral sign, it is simply integral B integral dl.
Okay, now what will be integral dl here? This integral dl here will be 2 pi r. r रेडियस है, तो इंटीग्रेशन dl के इंटीग्रेशन बताता किसको है कि जो हमने सर्कुलर लूप लिया उसके सारे dl एलिमेंट्स का सम है ये। तो सारे छोटे छोटे डीएल एलिमेंट्स को अगर हम लेके उनको ऐड कर दें तो पूरा क्या मिलेगा हमें? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, एंड दिस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विल बी इंटीग्रल डीएल. So it is what? It is simply b into L. Okay, this will be b into L. Now if we write, sorry, b into 2 pi r. L की वैल्यू क्या है हमारे लिए? Total length of the circle. It is 2 pi r. So when we put the value of b from equation number 1, okay, using equation 1 we get integral b dot dl is equals to b times of, it means mu naught I upon 2 pi r, and it is, sorry, yes, हाँ, 2 pi r into 2 pi r. तो देखो यहाँ पे 2 pi r से 2 pi r कंप्लीटली कैंसिल हो रहा है ना? 2 pi r यहाँ भी ब्रैकेट में था और 2 pi r यहाँ डिनोमिनेटर में इस एक्सप्रेशन के, तो it will be cancel out and we get simply it is equals to mu naught times of I, and which is what? It is right hand side. Okay, equals to right hand side of this equation 2, mu naught I, and this proves, hence prove हम यहाँ पर लिख सकते हैं, this proves the Ampere circuital law. तो ध्यान रखना जब आपको एम्पियर सर्किटल लॉ का प्रूफ दिया जाता है कि स्टेट एंड प्रूव द एम्पियर सर्किटल लॉ, देन यू हैव टू यूज दिस एक्सप्रेशन डायरेक्टली, कि हमें फिर ये पता होना चाहिए कि r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है ड्यू टू अ स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टिंग करंट कैरिंग वायर. ओके, सो नोट डाउन दिस वन. इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कई बार ऐसा ही क्वेश्चन आता है, स्टेट एंड प्रूव द एम्पियर सर्किटल लॉ. तो पहले हमें इस तरह का स्टेटमेंट लैंग्वेज में लिखा, फिर ये स्टेटमेंट मैथमेटिकल लिखा, फिर हम इस तरह का एक सिस्टम कंसिडर करके उसको इंट्रोड्यूस करके इस वे में मैथमेटिकली उसको प्रूव करेंगे. ओके, सो राइट डाउन. एनी डाउट यू कैन आस्क हियर. इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछो. So now the next topic is also important one, and the second application of the ACL. So write down next application. Second application of ACL, and it is to find magnetic field. ACL यूज आता है मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए. टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड. Due to a current carrying long solenoid.
okay, and it is also important one. Okay, so what is this solenoid? इसको मैंने पहले 5th चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया है दैट एक कंडक्टिंग वायर जो कि इंसुलेटेड हो उसको अगर हम हेलिक्स की फॉर्म में अगर बाउंड करते हैं देन इट फॉर्म अ हेलिकल पाथ जो होगा या हेलिकल फॉर्म जो होगा कंडक्टिंग वायर का, दैट इज कॉल्ड द सोलेनॉइड, उसे हम सोलेनॉइड कहते हैं। और हमने वहां ये प्रूव किया था कि अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज इक्विवेलेंट टू अ बार मैग्नेट। हर एक टर्न उसका एक छोटे डाइपोल की तरह बिहेव करता है और उसको हम एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो एक बड़ी बार मैग्नेट जिसकी लेंथ सोलेनॉइड की लेंथ के इक्वल हो। लेकिन यहां हमें ये बताना है कि एक सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, और इनसाइड द सोलेनॉइड ही हम बात करेंगे। आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। और हमें यहाँ पर इस टॉपिक में भी क्वालिटेटिव एनालिसिस ही करनी है। जो हमारा सिलेबस है वो इस बार रिड्यूस हुआ है और उसमें ओनली द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ द सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड लिखा है। फिर भी हम डेरिवेशन के स्टेप्स करेंगे और मेनली उसका बेसिक क्या है, क्या उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है, कैसे उस पर न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ACL को हम कैसे यहाँ यूज लेते हैं उसको है सिंपल सा, वही इंटीग्रेशन लेना है, उसको सॉल्व करना है, सिग्मा आई फाइंड करना है और दोनों की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है ACL के एक्सप्रेशन में। ओके, गॉस थ्योरम को अप्लाई करने का भी यही प्रोसीजर था, एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करने का भी यही प्रोसीजर है कि जो हमारे पास लॉ है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटीग्रल है उसकी वैल्यू फाइंड करो, राइट हैंड साइड में जो सिग्मा क्यू इन या सिग्मा आई इन है उसकी वैल्यू फाइंड करो और दोनों की वैल्यू उठा के रख दो उस लॉ वाले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड वापस से मिल जाएगा। सो इट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैग्नेटिक फील्ड हम सोलेनॉइड के इनसाइड फाइंड कर रहे हैं। और ये जो एक्सप्रेशन हमें मिलेगा द एक्सप्रेशन विल बी सेम एज वी विल डिराइव इन द केस ऑफ टॉरॉइड। ओके, तो टॉरॉइड हम बाद में डिस्कस करते हैं। देखो सोलेनॉइड, सबसे पहले तो इसका हम एक डायग्राम बनाते हैं। दिस इज द सोलेनॉइड एंड सो ऑन। एंड सपोज विद द हेल्प ऑफ बैटरी वी आर, यस माइक किसका ऑन है बेटा? रिंकू, ऑफ योर माइक। सो दिस इज द, यस, एनी डाउट? Okay, so this is the current. Okay, suppose the current is flowing in this direction. This is the direction of current and this is the solenoid जिसमें हमारे पास कंडक्टिंग वायर है और ये इंसुलेटेड है। अब ये मैंने यहाँ पर इसमें गैप रखा है बट एक्चुअल में सोलेनॉइड में गैप नहीं होता। एक स्प्रिंग लाइक शेप में इसकी कह सकता हूँ, देखो जैसे इस तरह की, है ना। दिस इज द टाइप ऑफ सोलेनॉइड जिसके दो एंड है, दिस इज द फर्स्ट एंड, दिस इज द सेकेंड एंड। ओके, एंड इसमें हम इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रहे हैं और करंट इस तरह से चल रही है हर एक लूप में। अब ये जो टर्न्स है ना, इसको अगर मैं यहाँ ज्वाइन भी कर देता हूं तो भी ये कंडक्टिंग और इंसुलेटेड होने के कारण ये शॉर्ट नहीं होगा। मींस करंट विल फ्लो इन वन बाय वन लूप। Okay, current will flow in one by one loop or and it will move in this second end, okay, up to the second end. So this is the shape of the solenoid जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड रहता है। उस मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन को हमें इसके कुछ पैरामीटर्स की हेल्प से या पैरामीटर्स की टर्म में फाइंड करना है। जैसे इसके अंदर के मीडियम की परमिएबिलिटी आएगी, इसमें फ्लो होने वाली करंट उस एक्सप्रेशन में आएगी और एक टर्म आएगी यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है। ओके, यानी यूनिट लेंथ के टर्न्स कितने हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो जितने हम यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। ओके, सो इन दिस केस फर्स्ट वी टेक द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो करंट ऐसे चल रही है हर लूप में, डायरेक्शन को समझना। तो करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन फॉर ईच लूप एंड इफ द करंट इन दिस डायरेक्शन देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी along the straight thumb, okay, stress thumb. So magnetic field in this direction, magnetic field जो होगा
वो राइट हैंड थंब रूल से इस डायरेक्शन में रहेगा. So this is the direction of current, curl fingers के around, and the stress thumb will be along the direction of magnetic field. But अब हम यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना चाहते हैं, और एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के लिए हमें एक एम्पेरियन लूप कंसिडर करना पड़ता है, and that एम्पेरियन लूप is a two-dimensional geometry. तो first we take the cross sectional view of this solenoid. इस सोलेनॉइड का हम एक क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाते हैं. देखो कैसा होगा वो क्रॉस सेक्शनल व्यू का मतलब है, जैसे ये सोलेनॉइड है, इसमें करंट फ्लो कर रही है, तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसा प्लेन लूंगा जो यहाँ बीच में से पास हो रहा है, जो इस सोलेनॉइड की लेंथ के अलोंग है, लेकिन परपेंडिकुलर टू दिस क्रॉस सेक्शन है. ओके, सो इस पर्टिकुलर प्लेन में जो करंट्स हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा. एक बार डायग्राम देखो, उसके बाद वापस से मैं एक्सप्लेन करता हूं. सो द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ दिस डायग्राम, दिस सोलेनॉइड इज लाइक दिस. उसको थोड़ा एनलार्ज कर रहा हूं मैं, एक्चुअल में यहां से यहां तक का ही गैप है, बट उसको एनलार्ज करके बता रहा हूं. देयर आर सम डॉट्स and each dot will represent each turn. हर एक डॉट एक टर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है. प्लस here will be the cross. जितने डॉट है उतने ही क्रॉस होंगे, और हर एक डॉट के नीचे लगभग क्रॉस रहेगा. तो जितने हमने डॉट्स यहां पर बनाए हैं, द सेम नंबर फॉर द क्रॉस. अब डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो इस डायग्राम में अगर देखें तो ऊपर से क्या हो रहा है, करंट बाहर की तरफ आ रही है, और यानी परपेंडिकुलर आउटवर्ड है. तो यहां भी क्या होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड के लिए हम डॉट यूज लेते हैं. डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, डॉट रिप्रेजेंट आई परपेंडिकुलर आउटवर्ड, एंड दिस क्रॉस रिप्रेजेंट आई परपेंडिकुलर इनवर्ड. Just a minute. जैसे सपोज करो मैं इसका एक सिंगल टर्न लेता हूं, है ना. सपोज करो इस सोलेनॉइड का मैं एक सिंगल टर्न ले रहा हूं, है ना, जो वापस टर्न हो जाएगी, घूम जाएगी. इस सिंगल टर्न में अगर मैं इस पॉइंट पे ऐसे मैंने क्रॉस सेक्शन लिया है, इस तरह से ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है, तो यहां से देखो करंट बाहर की तरफ आ रही है. द डायरेक्शन ऑफ करंट एट दिस पॉइंट इज आउटवर्ड, एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट एट दिस पॉइंट इज इनवर्ड, अंदर की तरफ है ये. तो इस पॉइंट पर करंट को हम डॉट से शो कर रहे हैं, और इन पॉइंट्स पर करंट को हम क्रॉस से शो कर रहे हैं. ये समझना कि ये डॉट और क्रॉस क्या है. ओके, ये इसी सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शनल व्यू है, जिसमें इस तरह से लूप्स बने हुए हैं, लाइक दिस. ये टर्न्स बने हुए हैं. उन टर्न्स में हर ऊपर वाला जो टर्न का पॉइंट है, वहां से करंट बाहर निकल रही है, एंड फ्रॉम ईच डाउनवर्ड पॉइंट द करंट इज मूविंग इनसाइड. समझ में आया. तो इस तरह का हमें क्रॉस सेक्शनल व्यू लेना है. इसकी लेंथ व्हाटएवर जो लेंथ है, इसकी टोटल लेंथ सपोज कर लेते हैं हम L है, L इज द टोटल लेंथ, और N जो है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स हैं टोटल. फॉर द गिवन सोलेनॉइड N is the total number of turns, and total length of the solenoid is L, and it is given, and they will be used in the final expression of the B. Okay, so in this case we will consider an amperian loop like this. एक rectangular amperian loop हमें यहाँ लेना है. This is the amperian loop. Okay, this one is the amperian loop. Closed loop होता है, but it is not compulsory that amperian loop is always circular. Okay, it is not necessary or compulsory. It can be rectangular, it can be square, it can be any two dimensional shape, जिसको मैं कह सकता हूँ. Clear? तो यहाँ हम circular नहीं ले रहे. So let us take this A, small a, B, C and D. These A, B, C, D, A. This is the amperian loop.
and direction of this Amperian loop is along this one. लूप की डायरेक्शन लेनी पड़ती है, तो वो लूप की डायरेक्शन यहाँ क्या है, A to B, B to C, C to D, D to A. ओके, समझना ध्यान से, जहां भी डाउट हो इंटरप्ट मी, आई विल एक्सप्लेन अगेन, बट इट इज इंपॉर्टेंट. और जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है ना, वो बेसिकली डायग्राम बेस्ड ही होती है. तो आपको डायग्राम अगर अच्छे से समझ में आ गया तो उसका एक्सप्लेनेशन तो बहुत इजी हो जाता है. ओके, सो this is the Amperian loop A B C D A. Now in this direction the magnetic field is along left to right. So inside this one the magnetic field will be along B to C. मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो अंदर ही है. एक्सटर्नल पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो मिलेगा. ओके, आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली जीरो होता है. अब वो क्यों होता है उसको मैं ऐसे ही लैंग्वेज में समझा देता हूं. नो नीड टू राइट अननेसेसरली, कोई जरूरी नहीं है इसमें. जैसे सपोज करो कि ये एक लूप है. ओके, इस लूप में कुछ करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ इसके सर्कुलर भी तो मैग्नेटिक फील्ड होगा. एक छोटा सा पोर्शन अगर मैं यहां लेता हूं, एक टर्न लिया है मैंने उस बड़ी सोलेनॉइड का, ये जो सोलेनॉइड थी मेरे पास में, इस सोलेनॉइड का केवल एक सिंगल टर्न लेके मैं बता रहा हूं. ओके, ओनली सिंगल टर्न आई एम टेकिंग. सो व्हाट विल बी देयर, हियर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, इसमें करंट फ्लो कर रही है और यहां भी मैग्नेटिक फील्ड होगा. तो ये स्प्रेड होता है एक्चुअल में, और ये सोलेनॉइड की जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना वो बहुत कम लेते हैं. तो उस सिचुएशन में इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके मैग्नेटिक फील्ड को आउटसाइड पॉइंट्स के लिए कैंसिल आउट कर देता है. यानी यहां जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना इस सोलेनॉइड के बाहर, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसके कारण अगर सपोज करो परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, तो इसमें जो करंट फ्लो कर रही है उसके कारण परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा. एंड दे विल बी इक्वल एंड अपोजिट, सो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर. समझ में आई बात? यानी मैग्नेटिक फील्ड जो आउटसाइड द सोलेनॉइड है वो कैंसिलेशन इफेक्ट के कारण जीरो मिलता है. तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में हमें एक्सप्लेन नहीं करना, बट मैं जस्ट फॉर नॉलेज बता देता हूं कि ये क्यों जीरो हो रहा है. वायर में जो करंट है उसके सराउंडिंग जो सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है. देखो, एक तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने कहा इस डायरेक्शन में है, जैसे ये अगर करंट कैरिंग सोलेनॉइड है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में, वो अलग है. और यहाँ जो इसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है करंट के कारण, वो मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट है. और इसी सराउंडिंग वाले मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो आउटसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो मिलेगा. ओके, सो रिमेंबर, for a solenoid either it is long or it is a toroidal, the magnetic field outside the solenoid is always zero. Okay, only inside the solenoid the magnetic field will exist. Okay, and that magnetic field हमें यहाँ पर फाइंड करना है, और ये भी यूनिफॉर्म होता है. जैसे हमने दो प्लेट्स ली थी, उनके बीच में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कहा था यूनिफॉर्म होगा, वैसे ही यहाँ भी इस सोलेनॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहती है. लेकिन एंड्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हाफ हो जाता है. इसको एज इफेक्ट कहते हैं. ओके, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, उसको हम एक लाइन में, एक शॉर्ट नोट में लिखेंगे कि एट जस्ट एंड ऑफ द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज द हाफ which we will derive, okay, due to the age effect. But here the magnetic field inside the solenoid through the all point, same direction, same magnitude. वो magnitude कितना है वो हमें find करना है. Okay, so first we consider this Amperian loop A B C D A. Okay, इस एम्पेरियन लूप को कंसीडर करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस डायरेक्शन में, तो इन चारों, एक इंटीग्रल करेंगे हम A से B तक, दूसरा करेंगे B से C तक, तीसरा करेंगे C to D एंड फोर्थ वन इज D to A, और चेक करेंगे कि DL और B में एंगल क्या क्या है. ओके, और एक पॉइंट यहाँ ध्यान रखना, इस एक्सटर्नल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो रहता है.
एट एक्सटर्नल पॉइंट यानी सोलेनोइड से बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ भी जीरो होगा और यहाँ इस रीजन में भी जीरो रहेगा. हियर आल्सो द बी विल बी जीरो. ओके, सो ड्रॉ दिस डायग्राम. इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद डेरिवेशन करेंगे. मीटिंग को मैं एक बार क्लोज कर रहा हूँ. रीजॉइन द मीटिंग. ओके, क्योंकि टाइम लिमिट आ गई है इसके अंदर. Rejoin the meeting. Considering a current carrying solenoid of length L and number of turns capital N. Okay, capital L is the length and capital N is the total number of turns. Okay, these are total number of turns. The current I is flowing as shown. Diagram are important. Both the diagram. It is the cross sectional view. इस डायग्राम के साथ लिख सकते हो, इट इज द क्रॉस सेक्शनल व्यू. द नंबर ऑफ टर्न्स, एक इंपॉर्टेंट कांस्टेंट हम यहां पर ले रहे हैं, विच इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. पर यूनिट लेंथ will be small n is capital N upon capital L. यही होगा. L लेंथ में n टर्न्स हैं, तो यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, n by L. ओके, so n will be what it is, n by L, and let it is equation number 1. फाइनल एक्सप्रेशन हमें इस स्मॉल n की टर्म में लिखना है. Remember, in third chapter, small n was number density of the free electrons, number of electron per unit volume. And here in the fourth chapter, this small n will be number of turns per unit length. Okay, तो ये number of turns per unit length को बताता है. इसका भी हम जो लेटर यूज लेते हैं, that is small n. Okay, so note down. उस डायग्राम के साथ ये दो पॉइंट लिख लेना. डॉट और क्रॉस किसे बता रहा है, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड वी यूज द क्रॉस सेक्शनल व्यू as shown. Okay, और डॉट और क्रॉस, each dot and cross represent सिंगल टर्न. हर डॉट और क्रॉस जो है वो एक सिंगल टर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है. मींस पेयर ऑफ डॉट एंड क्रॉस इज करस्पॉन्डिंग टू अ सिंगल टर्न. ओके, let AB CDA is, let ABCDA is the Amperian loop
क्योंकि हमें एम्पेयर सर्किटल लॉ अप्लाई करने के लिए एम्पेरियन लूप कंसीडर करना पड़ता है. ओके, द मैग्नेटिक फील्ड इज टूवर्ड्स राइट हैंड साइड एज पर राइट हैंड थंब रूल. ओके, राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड या टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन. ओके, टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से इनसाइड द सोलेनॉइड, इनसाइड द सोलेनॉइड and outside the solenoid it will be 0. Outside the solenoid it will be 0. Okay, due to the cancellation effect. चलो लिख लो एक लाइन में, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. ड्यू टू कैंसिलेशन इफेक्ट. ओके, इतनी डिटेल में बोर्ड पूछता भी नहीं है, पूरा सिलेबस था तब भी नहीं आता था. इसके लिए अलग से डायग्राम बना के उसको शो करना पड़ता है एंड दैट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड. ओके, सो नॉट रिक्वायर्ड. ग्रेजुएशन लेवल में आता है वो डायग्राम डिटेल में, हियर इट इज नॉट रिक्वायर्ड. सो राइट डाउन अप टू दिस वन. ये लाइंस नीचे वाली लाइंस में रफ कर रहा हूं, टेक द स्क्रीनशॉट. Now, first we find integral b dot dl. Okay, अब इसको समझना, हम यहाँ इस b dot dl किसके लिए, थ्रू द a b c d a. ओके, a b c d a जो पूरा एम्पेरियन लूप है उसके लिए हम यहाँ पर इस लाइन इंटीग्रल को फाइंड आउट कर रहे हैं. तो जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे देन इट विल बी a टू b b डॉट dl. पहले हमने गॉस थ्योरम में भी इस तरह के एक्सपेंड किया था इंटीग्रल को अलग अलग पार्ट में. जैसे हम वायर में जब सिलेंडर कंसीडर करते थे तो सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन के लिए अलग से लिखते थे, कर्व सरफेस के लिए अलग से लिखते थे. ओके, तो इस तरह से इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल को हम डिवाइड कर रहे हैं. यहाँ सर्कल नहीं आएगा बिकॉज a to b इज नॉट द क्लोज लूप. दिस वन a to b इज नॉट द क्लोज लूप. That's why. Okay, and plus this b to c, b dot dl, b to c, then c to d, b dot dl, and then last one is d to a, b dot dl. क्योंकि इन चारों केसेस में जो एंगल्स हैं वो डिफरेंट है. ओके, अब देखो dl क्या होगा, dl की डायरेक्शन जिधर हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में होगी. तो समझना यहाँ a से b dl इस डायरेक्शन में है और इस रीजन के लिए मैग्नेटिक फील्ड इधर है. तो एंगल कितना हुआ, थीटा विल बी 90 डिग्री होगा. dl in this direction and b in this direction, so angle theta will be 90 degree. So here in this case theta will be 90 degree. So this integral will become 0. cos 90 आएगा ना, cos 90 0 हो जाएगा. b to c, b is in this direction and dl is also in this direction. Theta will be 0. Okay, so for this integral theta will be what, it is 0. Then c to d, magnetic field here, and c to d dl is here. Theta is again 90. So here this theta is 90 degree. Clear? And for d to a, dl is in this direction but b is 0. ओके, तो थीटा का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा, थीटा होगा ही नहीं क्योंकि एक ही वेक्टर है वहां. तो यहां पर हम क्या कहेंगे, इन दिस केस दिस b itself is 0. सो अगर b dl cos अगर आप 0 भी लिखो, 90 भी लिखो, 180 भी लिखो, लेकिन b 0 होने के कारण क्या होगा, ये पूरा ही एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा क्योंकि b itself is 0. So only one term will remain and which one, this one term. ये टर्म यहाँ पर रहेगी, बाकी ये तीनों ही 0 हो जाती है.
Okay, only the last term will remains, so it will be what, integral b to c, it is b dl cos 0, and it is b integral b dl simply b to c, b को हम देखो b से लेके c तक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। मैग्नेटिक फील्ड मैंने अभी बताया केवल एज पर चेंज होता है, बाकी अंदर सारे पॉइंट्स पर यूनिफॉर्म रहता है। सो मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम बी टू सी विल बी सेम, so if it is same then it can be taken out and it is integral b to c dl, or let us suppose that this length is what, it is l। okay, b to c जो टोटल लेंथ है इस लूप की या इस पार्ट की, कर्व के पार्ट की, that is l। so this can be written as b into l, equation number 1। okay, what is l? l is b to c जो डिस्टेंस है उसको मैं l ले रहा हूं। b to c जो डिस्टेंस है that is l। small b is the name of this point and capital B is the name of magnetic field। so ध्यान रखना डिफरेंस को इनमें। so हमारे पास में एक वैल्यू आ गई इस इंटीग्रल की कि what is this integral which is the left hand side of ACL। अब हमें फाइंड करना है सिग्मा आई इन और उसको पुट कर देना है ACL के फॉर्मूले में, ओके, या लॉ के एक्सप्रेशन। सो नोट डाउन अप टू दिस वन, एनी डाउट यू कैन आस्क। नाउ हाउ वी फाइंड दिस सिग्मा आई? सिग्मा आई इन किस में फाइंड करना है? केवल इस एम्पेरियन लूप में जो टोटल करंट इसमें फ्लो हो रही है। तो हमने स्मॉल एन किसे कहा? यूनिट लेंथ में फ्लो होने, यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स को बता रहा है। तो यहाँ टोटल लेंथ कितनी है? एल। तो यहाँ टोटल टर्न्स कितने आएंगे? स्मॉल एन इंटू एल। देखो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मुझे अगर फाइंड करने हो इस एम्पेरियन लूप के अंदर तो वो कितने होंगे? एनएल होंगे ना। यूनिट लेंथ में टर्न्स है एन, यूनिट लेंथ में टर्न्स है एन, तो एल लेंथ में टर्न्स कितने होंगे? एनएल। अगर और हर टर्न में करंट कितनी है? आई। इन ईच टर्न करंट इज सेम। सो इफ देयर इज, सपोज करो इफ देयर इज 100 टर्न्स, देन व्हाट विल बी द करंट? 100 आई होगी ना। हर टर्न से एक करंट, आई करंट अगर फ्लो हो रही है तो जितने टर्न्स हैं उतने टाइम्स ही तो करंट हुई। टोटल जो करंट उसमें से फ्लो होगी इस एम्पेरियन लूप के अंदर से फ्लो होगी, और सबकी डायरेक्शन भी सेम है। ओके, सबकी करंट की डायरेक्शन कहाँ है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। सो ऑल विल बी एडेड, सब्ट्रैक्ट नहीं होगी कुछ भी। क्लियर? तो इन दिस केस अगर हम बात करें सिग्मा आई इन की, नाउ for sigma I in, the current in each turn, the current in each turn is I, and total number of turns in amperian loop इज NL होगा। हर टर्न से करंट आई है और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इस लूप में कितने हैं? NL। सो सिग्मा आई इन को क्या लिख सकते हैं? सिग्मा आई इन विल बी NL इंटू आई, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो NLI इज द टोटल करंट्स पासिंग थ्रू दिस एम्पेरियन लूप। उसी को हम सिग्मा आई इन कहते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ओके, नाउ वी आर हैविंग दिस इंटीग्रल वैल्यू, सिग्मा आई इन वैल्यू, जस्ट सब्स्टिट्यूट इन द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड फाइंड आउट द बी। ओके, बी हमें यहां पर फाइंड करना है। सो अकॉर्डिंग टू ACL, according to ACL, this integral b dot dl is equals to mu naught times of
sigma I in using equation 1 and 2. Using equation 1 and 2 पुट कर रहा हूं मैं वैल्यू. इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू क्या है इंटीग्रल की, इट इज BL, एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 इट इज NLI. ओके, सो L एंड L विल कैंसिल आउट, दोनों L की वैल्यू क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी. सो L एंड L, यहाँ इस एम्पेरियन लूप की लेंथ से हमें कुछ लेना देना नहीं है. जैसे गॉस थ्योरम भी जब हमने अप्लाई की थी तो स्ट्रेट वायर के लिए जो सिलेंडर फाइंड किया था उस सिलेंडर की हाइट से हमारा आगे चल के वो कैंसिल आउट हो रहा था. शीट के लिए जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था तब भी जो क्रॉस सेक्शनल एरियाज हमने लिए थे गॉसियन सरफेस के जो सिलेंडर था उसके, वो एरिया भी कैंसिल आउट हो रहे थे. तो जो डायमेंशन हम इन लूप की, एम्पेरियन लूप की या गॉसियन सरफेस की लेते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती. ओके, तो यहां भी क्या हुआ, ये लेंथ यहां पर कैंसिल आउट हो गई. तो B का एक्सप्रेशन क्या रहा, B is equals to mu naught Ni, and very important formula which you have to remember. Okay, that inside the long solenoid the magnetic field is mu naught Ni, and number of turns per unit length, remember N is what, it is N upon L, and I is current flowing through each turn, हर टर्न से जो करंट फ्लो कर रही है, एंड म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी इनसाइड द, या परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम इनसाइड द सोलेनॉइड, जिसको हमने अभी एयर और वैक्यूम लिया है. ओके, फॉर एनी अदर मीडियम, फॉर एनी अदर मीडियम इनसाइड सोलेनॉइड, inside solenoid the expression will be what, B is mu times of Ni, where this mu is mu naught times of mu r. ऐसा ही करते हैं हम हमेशा. अगर मीडियम को हम एयर वैक्यूम के अलावा कोई भी मीडियम लेते हैं then we just replace this mu naught by mu. Okay, so this is the final expression. The direction will be towards the right hand side according to the right hand thumb rule. अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा. ओके, सो एक लाइन और लिख लो, डायरेक्शन ऑफ B is given by right hand thumb rule. ओके, जो कर्व फिंगर्स हैं वो करंट की डायरेक्शन को और स्ट्रेस थंब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ द ACL and it is important one. Okay, so any doubt you can ask, otherwise you can leave the meeting.